morning, church. Good morning. Let's all stand up and worship the Lord. मेरा Yes, Lord. There is none like you, O Lord. Thank you, Lord, that you have chosen us, O Lord. Thank you, Lord, that you have saved us, O Lord. Thank you that you came into our life, O Lord. Yes, Lord. We are here today gathered, O Lord, as one family, O Lord, united in your love, O Lord. Yes, Lord. Help us, O Lord, to keep us always united, O Lord, in your love, O Lord. Once again, Lord, we want to thank you, Lord, for all that you have done in our lives, O Lord. For each and every member in our church, O Lord, we pray, O Lord, for their good health and protection, O Lord. You be with us, O Lord, and you lead us, O Lord, and guide us in each and everything that we do, O Lord. So that whatever we do, Lord, that you receive all the glory, honor, and praise. We worship you. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from
continue to praise you. We thank you for your salvation, Lord, that you came from heaven to earth, Lord, so that we can have salvation, we can have an eternal life in you. We thank you, God, for your precious blood that you have shed on the cross. You are worthy, Lord, you are the worthy Lamb, you are the worthy King, Jesus. We continue to praise you. We look to your character, Lord, your lovable God. You love us, you are graceful, Jesus. So thank you, we continue to worship you, Lord. Your name is beautiful and it's beyond our description, Lord. We praise you, we continue to honor you, Lord, as we sing the coming song, Jesus. We pray this prayer in the name of Jesus Christ. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description.
Lord. One day, O Lord, every knee will bow, O Lord, and every tongue will confess, O Lord, that you, Jesus, are the true and the living God. Once again, O Lord, we want to thank you, Lord, for this beautiful morning, O Lord, for bringing us together, O Lord, as one family, O Lord, to worship you in spirit and in truth. Give us a beautiful time, O Lord. In Jesus' most precious name we pray. गुड मॉर्निंग चर्च। Morning. गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा वर्शिप था। हम वर्शिप टीम के लिए जोरदार ताली देंगे पहले तो। परमेश्वर की बेटी। आज का समाचार ये हफ्ते का इस तरह है। पास्टर किशोर जो है मिशन ट्रिप में, आप सबको मालूम ही रहेगा। पास्टर किशोर कल आने वाले और वो मिशन ट्रिप के बारे में ज़्यादा अपडेट आपको देंगे। अगले हफ्ते जो है ज़्यादा स्लाइड्स फोटोज दिखाई देंगे। तो लेकिन इतना पास्टर किशोर बोले कि बहुत अच्छा मिशन ट्रिप अभी तक गए हैं, परमेश्वर ने बहुत बड़े कार्य किए वहाँ पर। तो धन्यवाद आप सबका प्रार्थना के लिए। और आज जो है हम हैप्पी चिल्ड्रंस डे ये बोलना चाहता हूँ। कितने जन यहाँ पर बच्चे खड़े हो जाइए, कितने जन बच्चे खड़े हो जाइए। नहीं आपको खड़ा रहना है, जब तक खड़े नहीं रहेंगे मैं नहीं करूँगा। अगर बच्चों के कैटेगरी में नहीं आ रहे तो मैं कुछ और समझूंगा। बुजुर्ग वो ना अपने आप को बुजुर्ग समझ रहे। यस All. और हम सब परमेश्वर के बच्चे। आमीन। तो जोरदार ताली देंगे परमेश्वर को। परमेश्वर हमारा पिता है, बराबर। तो हम सब उसके बच्चे। तो हम सब बैठ जाएंगे। मैं फिर से आपको ग्रेटर ग्रेस की तरफ से जो है मैं हैप्पी चिल्ड्रंस डे बोलना चाहता हूँ सभी लोग को। ओके। और वो हमारे बीच में नए स्लाइड्स नहीं कुछ। तो ये हफ्ता जो है फैमिली ऑफ द वीक पास्टर किशोर एंड फैमिली है। ओके, परिवार। तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए, पास्टर किशोर और परिवार। तो ये हफ्ता जो है आने वाले हफ्ते में 17 तारीख को ऑलिव का बर्थडे है। ओके, फैमिली ऑफ द वीक पर ये 17 तारीख को जो है 2 दिन का बर्थडे। ओके, क्रिस्टोफर और ऑलिव। क्रिस्टोफर हमारे बीच में यहाँ पर ये, तो ये दोनों के लिए हम विश कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। ओके। और फिर 19 तारीख को संगमित्रा पांडे, अभिजीत की जो बेटी। और फिर 20 तारीख को जो है आशीष मौर्य। आशीष देखो इधर ही है। ओके, तो आशीष का भी बर्थडे है। तो पिछले हफ्ते भी बहुत महान लोगों का बर्थडे था। ये बहुत ही अच्छे बहुत अच्छा बर्थडे था। ओके, इतना ही बोलना चाहता हूँ अनाउंसमेंट्स। तो यही है। तो ये सब लोगों के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और फैमिली ऑफ द वीक पास्टर किशोर है, उनके लिए भी आप प्रार्थना कीजिए, उनके पूरे परिवार के लिए। ओके, अभी ऑफरिंग मैसेज है, अजय आएंगे, अजय बताएंगे। ओके, थैंक यू। एक वचन पढ़ना चाहूँगा दान के लिए, जो भजन संहिता 23 का जो अध्याय हम बहुत बार पढ़ते हैं। उसका पहला वचन जो है बहुत ही अद्भुत है। जब हम परमेश्वर के प्रेम के और उसके दया के बारे में सोचते हैं तो पहला वचन ऐसा कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो यहाँ पर जो है बहुत ही अद्भुत जो है परमेश्वर हमें जो है बात देते हैं कि परमेश्वर यहोवा जो है हमारा चरवाहा है, वो एक अच्छा चरवाहा है और वो जो है मेरी सारी ज़रूरतों को जो है पूरा करता है। अगर हम आगे पढ़ते वचन दूसरे में, वह मुझे हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्मों के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हम देखते हैं परमेश्वर जो है हमें हर एक स्टेप में जो है वो हमें गाइड करता है, वो हमारी जो है अगुवाई करता है। और वो जो एक ऐसा चरवाहा है जो हमें जो है वो साथ में लेके चलता है। तो जब हम इस वचन के बारे में सोचते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम परमेश्वर को जो भी देते हैं, परमेश्वर जो है उसका जो है आशीष हमें जो है वो देता है। और हमें किसी बात की भी जो है घटी नहीं होगी, कोई भी बात की जो है हमें कभी नहीं वो होने देता है। तो इसलिए जो है हमें दान देना है और परमेश्वर पर विश्वास करना है कि वो हमारी सारी ज़रूरतों को जो है वो पूरा करेगा। और
हम परमेश्वर जो है विश्वास हो गया इतने हर एक कठिन समय में जो है परमेश्वर हमारे साथ रहता है और वो हमारी सारी ज़रूरतों को जो है पूरा करता है। तो आज हम धन्यवाद के हृदय के साथ जो है हम दान देंगे और आइए हम दान के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। पिता हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी सारी ज़रूरतों को जो है पूरा करते हैं और आप हमें किसी बात की घटी न होने देते। पिता हम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। अनाउंसमेंट्स था जो मैं भूल गया एक्चुअली। पिकनिक के बारे में बोलना चाहता हूँ। पिकनिक का जगह नहीं मिलने की वजह से पिकनिक कैंप जो है कैंसिल हो चुकी है अगले महीने। ओके, कैंप के लिए जगह नहीं मिली तो इसके लिए पिकनिक कैंसिल हो गई है। तो आइए अभी स्वागत करते हैं। पहला मैसेज क्रिस्टोफर जी का। क्रिस्टोफर के लिए जोरदार ताली देंगे। Once again, good morning, church. नमस्ते दोस्तों।
said, like today is Children's Day. जैसे कि आज बच्चों का दिन है So we'll have a song at the end from children. और हम आखिर में बच्चे लोग जो है वो गाना But गाएंगे also let's pray for them और उनके लिए प्रार्थना करेंगे अभी, because we know that children are the future. क्योंकि बच्चे जो है आने वाले भविष्य है। So let's pray for our kids. तो आइए प्रार्थना करते हैं उनके लिए। So today I am going to speak तो आज मैं बात करने वाला हूँ about the character traits of Jesus. और जो यीशु का जो गुण है उनके बारे में बताना चाहता हूँ। We all say that I want to be like Jesus. हम सब बोलते हैं कि हम यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हैं। So let us see today. तो आज देखेंगे If you want to be like Jesus, अगर आपको यीशु मसीह की तरह होना है what kind of life we have to live. किस तरह का जीवन हमें जीना है। So we all have role models. तो हम सब के पास एक ऐसा व्यक्ति है रोल मॉडल। If you ask a teenage boy अगर आप कोई जवान लड़का को पूछते हैं who is his role model, अगर उसको पूछेंगे कौन है आपका आदर्श व्यक्ति, he says I want to become one day like a MS Dhoni or Virat Kohli. वो बोलेगा कि मुझे MS धोनी या फिर विराट कोहली की तरह बनना है। But all these role models are good, और ये सब आदर्श के लोग अच्छे हैं, but they are not perfect लेकिन वो सिद्ध नहीं है, because they will disappoint us one day. क्योंकि वो एक दिन निराशा करने वाले हमें। Because there is only one perfect role model, देखिए एक ही जो है आदर्श व्यक्ति है, and who can never disappoint us. वो कभी भी हमें निराश नहीं कर And सकते। that perfect role model is none other than Jesus. वो स्वयं यीशु मसीह है जो सिद्ध है आदर्शवादी। So today I am going to speak about the 10 character traits of Jesus. तो आज जो है मैं 10 गुण के बारे में बताऊंगा यीशु मसीह का। If we say that I want to be like Jesus, अगर हम बोलेंगे मुझे यीशु मसीह की तरह बनना है, so we can follow this. तो हम इसको लागू कर सकते हैं, हम इसके पीछे चल सकते हैं। Jesus was compassionate. और यीशु जो है दयावान था Jesus never looked away from people. और वो कभी भी जो है लोगों की तरफ हमेशा देखते थे वो। In Matthew chapter 9 verse 36, और मत्ती का 9:36 में बोलते हैं, it says that Jesus always looked upon people with compassion. और यीशु मसीह लोगों को हमेशा दया से देखता था। And whenever there were people around Jesus, और जब भी यीशु के इर्द गिर्द लोग रहते थे he always tried to understand their needs. और हमेशा उनकी जरूरत को वो समझता था And he took time to address their needs. और उसे जो है वक्त लेता था कि उनका जरूरत को पूरा करे। Sometimes some people came to Jesus for physical healing. कई बार कुछ लोग जो है शारीरिक चंगाई के लिए आए यीशु मसीह के पास। And sometimes some people came to Jesus for some spiritual needs. कई बार कुछ लोग आत्मिक जरूरत के लिए भी आए यीशु के पास। But in all these cases we see और ये सारी चीजों में हम देखते हैं Jesus always took time to listen to the people's need. और हमेशा यीशु मसीह वक्त देता था उनका जो भी जरूरत था उसको सुनने के लिए। And he had compassion upon them. और उनके ऊपर जो है बहुत ही वो दया करता था। Also we see that Jesus had a heart of a servant. और ये हम दूसरा वो ये भी देखते हैं कि यीशु का जो हृदय है वो एक सेवक की तरह था। Without any doubt we can say that Jesus was the best servant. हम बिना सोचे समझे भी बोल सकते हैं कि यीशु मसीह एक अच्छा सेवक है। When Jesus was on this earth, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे he was praised because he was a great teacher. और उनका बहुत ही बड़ाई होती थी क्योंकि वो अच्छे गुरु भी थे। And he had a great crowd used to follow Jesus. और बहुत सारी भीड़ उनके पीछे चलती थी, But he always made sure लेकिन वो हमेशा ये खातरी करते थे to teach everyone कि सबको पढ़ाते थे that we need to be servants. कि हमें जो एक सेवक की तरह बनना है। And he did this और वो ऐसा किया, by actually became himself a servant. वो इस तरह किया कि वो खुद ही सेवक बनकर दिखाए। In Mark chapter 10 verse 45, और मार्कुस का 10:45 में बोलते हैं, Jesus is telling everyone और यीशु सभी लोग को बोल रहे हैं that the Son of Man कि ये मनुष्य का पुत्र has came not to be served, और वो इसलिए नहीं आए कि उनकी सेवा किया but जाए, to serve. लेकिन वो सेवा करने के लिए आए। So despite Jesus having the authority, तो यीशु मसीह के पास अधिकार होने के बावजूद भी he could have done whatever he wanted while he was on this earth, यीशु चाहते तो कुछ भी कर सकते थे जब इस दुनिया में थे तो, but he did exactly the opposite. लेकिन उसने पूरा विरुद्ध किया। He lowered himself वो अपने आप को जो है बहुत ही छोटा कर दिया and he became a servant. वो जो है एक सेवक बन गए। And we see that Jesus was loving. और हम ये भी देखते हैं कि यीशु जो है बहुत ही अच्छा प्रेमी है। Jesus always had great love for others. और यीशु का पास हमेशा दूसरों के प्रति अच्छा प्रेम था।
If Jesus never had love, अगर यीशु मसीह के पास प्रेम नहीं रहता था दूसरों के लिए, he would never have been compassionate. तो फिर वो दयावान नहीं हो सकता था। If Jesus never had love, अगर यीशु के पास दया प्रेम नहीं रहता था, then he would never been a servant. तो फिर वो सेवक भी नहीं बनते थे। And Jesus claimed that और यीशु मसीह ने उसको साबित किया the greater love, Jesus claimed that there is no greater love और यीशु मसीह ने बोला कि इससे बड़ा प्रेम नहीं हो सकते than to die for one of your friends. और कि एक वो अपने मित्र के लिए मर जाए, And he did exactly the same. और उसने उसी तरह ही किया। Today he died for us. तो आज देखते तो वो 2000 साल पहले हमारे लिए मर गए। Today if anyone has any doubt अगर किसी के पास कुछ भी शंका है आज about Jesus' love, यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, all they have to do is उन्हें सिर्फ इतना ही करना है they just have to look at the cross और उन्हें क्रूस की तरफ देखना है and say these words और उनको जो है ये शब्द बोलने हैं that Jesus died for me, a sinner. और कि यीशु मसीह मेरे लिए पापों के लिए मर गया। Yes, Jesus experienced this horrible death on the cross. हाँ, यीशु मसीह ने ये जो है बहुत ही भयानक जो है वो उसकी एक्सपीरियंस लिया क्रूस के ऊपर, So that we all can be saved. ताकि हम सब जो है बच जाए, Because Jesus loves us. क्योंकि यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, That's why he died for us. इसीलिए वो हमारे लिए मर गए, So that we can spend one day ताकि हम एक दिन वहाँ पर बिताए, eternal life with him in heaven. अनंत काल का जीवन उसके साथ बिताए। Also we see और हम ये भी देखते हैं that Jesus was forgiving. और यीशु जो है दया माफ भी करते। In Luke chapter 23 verse 34, लूका का 23 और 24 में बोलते हैं we can hear that some of the best words coming from Jesus' mouth on the cross. कि यीशु का जो है महान वचन जो है क्रूस से आते हैं। Yes, Jesus was on the cross and he was proclaiming. हाँ, यीशु मसीह जो है क्रूस के ऊपर थे और वो घोषणा कर रहे थे। He said, Father, forgive them, उन्होंने बोला कि पिता इन्हें माफ कर, for they know not what they do. और उन्हें मालूम नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। Even while Jesus was bleeding and going through so much of pain, और जो है यीशु मसीह इतने सारे दुख और तकलीफ से भी जा रहे थे क्रूस के ऊपर, and all these problems, और ये सारी तकलीफों में भी his heart was set on forgiveness, माफी के ऊपर था, even forgiving those और जो है उनको भी माफ किया उन्होंने, who were responsible to put him on the cross. और जो है वो पूरी तरह रेस्पॉन्सिबल थे जो यीशु को क्रूस के ऊपर डालने के लिए। Because Jesus was not concerned about his life. और क्योंकि यीशु मसीह अपनी जीवन का चिंता नहीं कर रहे थे, Because he came to give forgiveness. क्योंकि वो इसलिए आए, माफ करने के लिए आए थे वो। And we see that Jesus was committed. और हम ये भी देखते कि यीशु मसीह जो है कमिटेड थे। Jesus had no lack of commitment. और ऐसा कुछ नहीं था जो वो न बोले नहीं किया। Whatever he was, वो जो भी वो थे, whoever he was with, और जिसके पास साथ भी वो थे, he was fully committed to his goals. और वो पूरी तरह जो है अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह निष्ठावान थे। We see in the Garden of Gethsemane, Jesus knew लेकिन यीशु को मालूम था it was the only way to pay for everyone's sins. कि ये एक ही रास्ता है कि सभी के पापों के लिए जो है दाम चुकाया जाए। So we can see that he was fully committed to his goal. तो हम देखते हैं कि वो पूरी तरह जो है अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह प्रभावित थे। There were many obstacles in his ministry, बहुत सारे जो है रुकावट आई उसके सेवकाई में भी, but he stayed on track लेकिन वो जो है लक्ष्य की तरफ बने रहे, and finally he finished strong. आखिर में जो है वो बहुत ही जयवंत होकर आगे आए। And we see that Jesus was prayerful. और हम ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह बहुत ही प्रार्थना भरे व्यक्ति थे। No matter how busy Jesus was in his ministry, इसमें कोई मायने नहीं रखती थी कितना वो जो है बिजी थे अपने सेवकाई को लेकर, he always found time वो हमेशा वक्त निकालते थे to pray, to go alone and pray to his Father. कि वो अकेले जाकर पिता के साथ प्रार्थना करते थे, पिता के पास। Wherever Jesus was, जब जहाँ कहीं भी यीशु रहते थे, he used to disappear for a while, वो वहाँ से जो है निकल जाते थे कुछ समय के लिए, so that he can spend time with his Father. ताकि वो अपने पिता के साथ वक्त बिताए कुछ। People were always trying to find where Jesus was, लोग हमेशा ढूंढते रहते थे कि यीशु कहाँ पर है, but he never turned them away. लेकिन यीशु मसीह उनको ऐसे ही लौटा नहीं दिया, But he always made sure लेकिन वो हमेशा खातरी कर देते थे that he would give priority कि वो जो है प्राथमिकता देते थे to spend time with his heavenly Father. कि वो जो है अपने पिता के साथ समय बिताने में प्राथमिकता देते थे। And we see that Jesus was gentle. और हम ये भी देखते कि यीशु जो है बहुत ही कोमल थे। We see that there were times हम देखते कि ऐसा भी वक्त था
that Jesus used very stern words कि यीशु मसीह ने थोड़ा बहुत कुछ कठोर शब्द भी इस्तेमाल किए when it was really required. जब वो उसकी जरूरत थी। But he knew at times लेकिन एक वक्त आता था उस वक्त भी when he needs to be gentle. तब जो है वो कोमलता में भी रहते थे। The children used to love coming to Jesus. तो बच्चे लोग जो है यीशु के पास आने के लिए बहुत ही पसंद करते थे। And Jesus used to tell the disciples तो यीशु मसीह जो है अपने चेलों को बोलते थे not to hinder the children coming to me. कि उन्हें बच्चों को रोको मत मेरे पास आने से। So whenever he spoke to any mother कि जब भी वो कोई भी माँ से बात करते थे यीशु मसीह or any ladies, या फिर कोई भी स्त्री से, he was very kind-hearted and gentle. वो हमेशा कोमल और नम्रता से बात करते थे। And also we see that Jesus was patient. और हम ये भी देखते थे यीशु मसीह जो है बहुत ही धीरजवान है। Throughout the gospel, पूरे सुसमाचार में Jesus is clearly portrayed as a very patient man. और यीशु मसीह को जो है हम देखते हैं कि वो बहुत ही धीरजवान व्यक्ति है। Even some of the disciples doubted him. और जो है कुछ चेले लोग भी उसके ऊपर शंका की। The Pharisees and the Sadducees attacked him. और सैदूसी और फरीसी लोग ने उसके ऊपर हावी भी बोल And it दिया। was not easy for Jesus. और ये आसान नहीं था यीशु के लिए। So despite all of this, और इसके ये सब के बावजूद भी he kept calm वो जो है हमेशा को नम्र रहते थे and he शांत responded रहते थे to them और फिर उनके प्रति वो रेस्पॉन्ड भी करते थे in a very gentle way. और कोमलता से। And we see that Jesus was humble. और हम ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह बहुत ही नम्र भी थे। When Jesus was on this earth, जब यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे he had every opportunity उसके पास हर एक मौका था and a right और सही मौका to demand praise for all the miracles that he did. और वो इसके लिए कि वो जो भी वो चमत्कार करते थे उसकी जो है बड़ाई हो। He could have been very proud और वो हो सकते थे बहुत ही घमंडी भी हो सकते थे because he was one of the greatest teachers. क्योंकि वो सबसे अच्छे जो है गुरु भी थे। Even the crowds wanted to make Jesus a king. और जो है क्योंकि वो भीड़ पूरे जो है यीशु को राजा भी बनाना चाहते थे। But he did not allow this to happen. लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा होने नहीं दिया। He also did not wanted his miracles to be like a performance. और वो ऐसा भी नहीं किया कि उसका जो चमत्कार है वो इसी तरह काम की तरह जाए। Because what Jesus wanted, लेकिन क्योंकि क्या यीशु चाहते थे यही चाहते थे that he came to seek and to save the lost वो इसलिए आए थे कि खोए हुए भटके हुए लोगों को ढूंढने के लिए and to offer forgiveness for sinful people. और उन्हें जो है क्षमा देने के लिए जो पापी लोग हैं। Yes, he could have traveled around और वो यहाँ वहाँ सब जगह वो यात्रा करते थे to show off his powers, और जो है वो अपनी जो है सामर्थ दिखाने, but he did not choose to do that. लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। Finally, we see आखिर में देखते हैं that Jesus suffered a lot. और यीशु मसीह बहुत तकलीफ से भी गए He suffered a lot in his life, और उसके जीवन में बहुत सारे तकलीफ से गए यीशु मसीह, but he kept quiet. लेकिन वो हमेशा चुप थे। And Jesus was obedient और यीशु मसीह जो है हमेशा जो है वो आज्ञाकारी रहे till his death upon the cross. जब तक वो क्रूस के ऊपर मौत तक भी। So I would like to say, मैं इतना बोलना चाहता हूँ अभी this is what we need to do. हमें इस तरह करना है। If you want to say that I want to be like Jesus, अगर मैं बोलूँगा कि मुझे यीशु मसीह की तरह बनना है, let's think about this as we go home और जैसे कि जब हम घर में जाते हैं तो इस सारे चीजों के ऊपर मनन करेंगे and give our life to Jesus, और हमारे जीवनों को यीशु मसीह के पास दे देंगे because he is the one क्योंकि वही है who will lead us, और जो है अगुवाई करते हैं, who will guide us वो जो है हमें मार्गदर्शन देते and हैं protect us. और हमें सुरक्षितता में भी रखते हैं। Amen. आमीन चर्च। जोरदार ताली देंगे अभी। So let's welcome Newton. न्यूटन का स्वागत करते हैं। Hey, good morning, church. नमस्ते चर्च। What an amazing word. और बहुत ही अच्छा वचन हमने अभी तक सुना। Like I never knew many of the. सचमुच में जो है फिर से जन्मे हुए ईसाई लोग हैं। Are you accepted Jesus as your personal savior? क्या आपने जो है यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है क्या?
Have you repented of your sin and accepted Jesus as your personal क्या Savior? आपने पापों का माफी मांगकर यीशु मसीह को अपनाया है क्या उद्धार And करते this के is रूप the में? first and foremost qualification that we all need. ये पहला सबसे महान जरूरत है, हम सबको जरूरत है इसका। That we need to be a born again Christian. और हम सबको जो है फिर से जन्मा हुआ ईसाई बनना है। Point number 2. दूसरी बात, Are you a follower of Jesus Christ? What kind of prayer life that you are having? क्या आप यीशु मसीह के पीछे ऐसे ही चलने वाले व्यक्ति हो तो फिर आपका प्रार्थना भरा जीवन क्या है? Like a personal fellowship with God, personal intimacy with God. कि व्यक्तिगत संगत यीशु मसीह के साथ, व्यक्तिगत रिश्ता यीशु मसीह के साथ। In Luke chapter 6 verse 12, here it says that लूका का 6:12 में इस तरह बोलते हैं, at that time he went off to the mountain to pray and spend the whole night in prayer. कि उस वक्त यीशु मसीह जो है पहाड़ पर चले गए और पूरी रात जो है प्रार्थना में वक्त बिता दी। Like this is point number 2, prayer life. और ये दूसरे श्रेणी में आते हैं कि वो प्रार्थना भरा A जीवन personal fellowship with God. और जो है व्यक्तिगत जो है संगति यीशु मसीह के साथ, Like you speaking to God and God speaking to you personally. कि आप यीशु मसीह के साथ बात कर रहे हैं, यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से। Having really a quiet time with God क्या- is very, very important in our Christian life. एक चुपचाप समय यीशु मसीह के साथ बिताना एक ईसाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त होते हैं। Point number 3. तीसरी बात, Are you a follower of Jesus Christ and are you listening to our Lord Jesus Christ? क्या आप वो यीशु मसीह के चलने वाले पीछे चलने वाले वो व्यक्ति हो तो आप यीशु मसीह के सुनते हो क्या? So while Jesus was speaking, जब यीशु- bright light came, voice from heaven said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him." जब यीशु मसीह बात कर रहे थे तो उनके ऊपर स्वर्ग से जो है रोशनी आई, तो उस रोशनी से ये शब्द आए, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इनकी सुनो, जिससे मैं बहुत ही प्रसन्नित हूँ। Like a voice came from heaven, Father speaking from heaven to all the surrounding people over there, and he's saying to all the people there, "Listen to my son." कि शब्द जो है स्वर्ग से जो है पिता की ओर से आया और वो शब्द इस तरह बोला सभी लोग को, वहां पर खड़े हुए लोग को, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी बात सुनो। So are you listening to God क्या आप यीशु मसीह के सुनते हो क्या? in your prayer and personal life? और प्रार्थना भरा जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में भी। Point number 4, और चौथी बात, belief. और जो है विश्वास। Just as we trusted Jesus Christ as our personal Savior, जैसा हमने यीशु मसीह के ऊपर अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा है, so we should completely trust Jesus Christ in our spiritual life. तो हमें पूरी तरह जो है आत्मिक जीवन के ऊपर भी उसके ऊपर ही भरोसा करना है। Like trusting Jesus Christ in many things in our life. कि यीशु मसीह के ऊपर हर एक चीजों के ऊपर जो है यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करना, विश्वास करना, That God is able to do the impossible. कि परमेश्वर जो है वो सब कुछ कर सकते हैं जो नामुमकिन है। In my spiritual life, in my marriage life, in everything in my day-to-day life, God is able to help me and God is able to do things in my life. कि मेरा व्यक्तिगत जीवन में, मेरा शादीशुदा जिंदगी में, हर एक जीवन के क्षेत्र में वो सारी चीज यीशु मसीह कर सकते हैं जो नामुमकिन है। Like in the time of suffering, in the time of financial trouble, like God is able to do all things that I believe in Him and I trust in Him. कि वैसा वक्त आते जब मैं तकलीफ से गुजरता हूँ या आर्थिक स्थिति से गुजरता हूँ तो मैं पूरी तरह उसके पर विश्वास करना है मुझे। Point number 5, being obedient to Jesus Christ. पांचवा पॉइंट जो है ये है कि यीशु मसीह का आज्ञाकारी व्यक्ति बनना। That we may not be obedient to our bosses. हो सकता है कि हम जो है अपने मालिक के अधिकारी That में नहीं, our children may not be obedient to the parents. हो सकते हैं बच्चे लोग भी अपने माँ बाप के नहीं सुनते, But as a follower of Jesus Christ, we need to be obedient to our Lord Jesus Christ. लेकिन एक जो है यीशु मसीह के चलने वाले व्यक्ति जो है उसके यीशु मसीह के आज्ञाकारी व्यक्ति बनते हैं। And being obedient to Jesus Christ, this is in best interest of us personally. और ये जब हम यीशु मसीह के आज्ञाकारी बनते हैं तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा लाभकारी बात है। That whatever comes in my way, I will obey God and I will always have, He always has the best for me. कि जो कुछ भी हो मेरे जिंदगी में यीशु मसीह के पास मेरे लिए सबसे अच्छा जो है चीजें हैं तो मैं उसकी सब आज्ञा मानूंगा। Point number 6, छठवां बात, it's love. उसका प्रेम। The first thing that disciple like Jesus Christ, what is the first and foremost commandment? तो एक यीशु मसीह के चलने वाले पीछे चलने वाले व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी आज्ञा क्या है यीशु मसीह के लिए? यीशु And मसीह की तरफ Jesus से। plainly said, love the Lord your God with all your heart. और यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि आप
पूरे मन से जो है ये परमेश्वर की जो है वह तू उनसे प्रेम करना। So loving God is one of the foremost thing and one of the very important character that we have for God. तो परमेश्वर से प्रेम करना ये सबसे अच्छा जो है एक गुण है हमारा। Because when we start loving God, everything just falls straight away. क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो सब चीजें जो है सही हो जाती है। When I start loving God, जब I also love my brothers and sisters in Christ. जब मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा तो मैं अपने भाई बहन से भी जो मसीह में है उनसे भी प्रेम करूंगा। I start loving my neighbors and I start forgiving them for whatever wrong they do. और मैं जो है फिर मेरे भाई बहन और फिर मेरे हर एक पड़ोसी को भी माफ करूंगा जैसा मसीह माफ करते हैं। So the last point I want to share with you is, are you a following of Jesus Christ and are you sharing the gospel to the lost people? तो आखिरी बात यही बोलना चाहता हूँ कि जब आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति हैं तो क्या आप यीशु मसीह का संदेश जो है सुसमाचार दूसरों के प्रति बांट रहे And हैं? this is the commandment of our Lord Jesus Christ, that you go and share the gospel, you make disciples unto them. कि ये महान आज्ञा जो है परमेश्वर यीशु मसीह से स्वयं है, तो आप क्या जाकर सभी लोगों को गॉस्पेल बताते हैं क्या? Taking every opportunity to share the gospel to the lost. कि हर एक मौके का फायदा लेते हुए उन खोए हुए लोगों को जो है सुसमाचार बताना And explaining the true word of God or true gospel to the lost people. और फिर जो है वो हर एक उनको जो है सुसमाचार का मतलब बताना उन खोए हुए लोगों को। So these are the main important points तो ये जो है कुछ खास बातें हैं that I want to share this morning. और ये सुबह यही बोलना चाहता हूँ What it is to be a follower of Jesus Christ. कि क्या ये मायने रखते हैं जब हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले होते हैं Let's तो क्या pray. करना है? Father, we just thank you once again for this wonderful time. पिता परमेश्वर इस खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you for your word धन्यवाद आपका वचन के लिए that always encourages us, comfort us. जो हमेशा हमें जो है सांत्वना देती है, हमें जो है एनकरेज करती है प्रभु। Lord, we continue to pray for our missionaries. और हम अपने मिशनरी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। Lord, you help them and you just give them a beautiful time there. और हम उन्हें मदद कीजिए, उन्हें अच्छा समय दीजिए वहाँ पर। Lord, this morning once again, thank you for everything, इस Lord. सुबह हर एक चीज के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। In Jesus' name, amen. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. He's so good all the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, for He will guide you, and He will keep you safe and sound. For He has promised to never leave you, nor forsake you. And His word is true, God is good all the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. He is so good all the time. आइए हम सब प्रार्थना करेंगे बच्चों के लिए, खास तौर से स्वर्गीय पिता, आज इस दिन के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो भी हमें इस विधि में तूने लाया कि आज बच्चों का खास दिन है प्रभु। हमें सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रभु इनके साथ तू बने रहे प्रभु, और इनको तेरे मार्गों में चलने के लिए पूरी तरह मदद कर, सहायता कर प्रभु। पवित्र आत्मा इनको हर एक मौके में तुझसे निर्भर होकर हर एक चीज़ें के ऊपर फैसला करने के लिए इन्हें मदद कर, ताकि ये तेरे आज्ञाकारी बनकर जो है माँ बाप का भी आज्ञाकारी बने प्रभु। हम ये भी प्रार्थना करते हैं इनका आगे का पढ़ाई के लिए भी प्रभु, इनकी पढ़ाई में तू ही आशीष दे प्रभु, इन्हें अच्छा और भी आगे अच्छा जीवन दीजिए, अच्छा हेल्थ दीजिए प्रभु। ये सारी चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु सारे बच्चों के लिए, और भी जो बैठे हुए बच्चों के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।